Hello, hi, welcome, namaste. I am Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. And as you all know, that I have started a podcast talk show on Joyful Journey, Your Path to Happiness. So guess what? Today I have an esteemed guest with me, Dr. Sween Saini ji. Thank you so much, ma'am, for coming and accepting my invite. Thank you, Preeti. You know, joy is much needed ingredient in life recipe. And I'm so excited to be with you on this joyful journey. And I'm blessed to be picked through your channel, darling. Thank you so much for inviting me. My pleasure, ma'am. It's a great blessing for me too to have you. And just slowly and slowly, I am going to introduce ma'am also that Dr. Sween Saini ji is a clinical psychologist, parenting coach, counseling expert, life skills trainer, career strategist, serving masses across the globe since 1991. From the Mind Mentors, we coach your soch. And she is also a multi awards winner in the international award winnings, and she has been working for 33 years of experience with the mission of transforming the individual's mindset to being a better than yesterday and living the meaningful purposeful life. So thank you so much, ma'am, for such a great adventurous journey you have. Thank you. My pleasure. So, as you all know that I have already introduced that ma'am is a founder of the Mind Mentors. So, we have taken this topic for today is mental health, the psychologist perspective. Ms. Ma'am is also a Yeah. psychologist. So, I would love to ask you, ma'am, that what is the main reason you chose this subject as a career? Thank you, Preeti. Hello, everyone. I'm glad to interact with such a wonderful audience through your channel. And trust me, Preeti, it has been 33 years. And whenever I sit and look back to find out the answer to this question, I always found that my journey into the field of psychology, it was not predestined, or it was, I will say, it was driven by a particular career goal. No. Instead, it emerged as a universal calling, guided by circumstances and a shared vision with my husband, Mr. Prem Saini. क्योंकि 1991 में जब हमने होशियारपुर में अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सेटअप किया विद द नेम ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही प्यार से नाइस कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, लेकिन बाउंडलेस डिटर्मिनेशन थी, क्योंकि हमारा सपना था कि इस रूरल बेल्ट में हमने यंगस्टर्स को बेस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग और लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करने हैं। तो 33 इयर्स बैक कंप्यूटर का नाम यहाँ किसी ने सुना ही नहीं था इस एरिया में, और इनिशियल चैलेंजेस टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजी टू ए कम्युनिटी अनफेमिलियर विद इट बहुत बहुत जबरदस्त डिफिकल्ट था। लेकिन हमारी कमिटमेंट टू एजुकेशन एंड आई यूज माई सेल्फ एज ए व्हीकल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, तो माई रोल एज ए सेंटर मैनेजर एंड करियर काउंसलर डिमांडेड रेंटलेस डेडिकेशन टूवर्ड्स दिस। तो जिसमें सबसे इंटेग्रल पार्ट था तब इस बेल्ट के पेरेंट्स को काउंसिल करना कि वो बच्चों को बाहर निकालें, स्पेशली लड़कियों को 12th या ग्रेजुएशन तक पढ़ाया जाता था और शादी करा दी जाती थी। सो माय प्राइम मिशन वाज टू लेट गर्ल्स कम टू माय इंस्टीट्यूट। सो हमने फ्री एजुकेशन भी दी जिनको अफोर्डेबल नहीं थी। तो काउंसलिंग पेरेंट्स क्राफ्टेड मी एज ए पेरेंटिंग कोच। फिर हमने, जब मेरे अपनी खुद की बेटियां हुई, होशियारपुर में बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, मैं एक बिजी प्रोफेशनल बिजनेस वुमेन थी, तो बच्चों को कहाँ बिजी करें छुट्टियों में, कोई सोर्स नहीं मिलता था। फिर हमने समर कैंप्स इनिशिएट किए होशियारपुर में। हम दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद जाते थे ट्रेनिंग्स के लिए, और वहां की नई टेक्नोलॉजीज, नए कंसेप्ट होशियारपुर लेके आते थे। तो फिर उसके बाद करियर काउंसलिंग, लाइफ स्किल वर्कशॉप, एडोलेसेंट ट्रेनिंग, जैसे जैसे यंगस्टर्स के मुद्दे और नीड्स बदलती गई, वैसे वैसे हमने खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया। तो जब पंजाब में ड्रग्स बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी, तो मैंने डॉक्टर किरण बेदी मैम के साथ कोलैबोरेट किया फॉर ड्रग डी एडिक्शन मिशन। और तब मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी बहुत सारे सामने आए, फैमिली इश्यूज बड़े सारे सामने आए, रिलेशनशिप इश्यूज बड़े सारे सामने आए।
तो एज ए रिलेशनशिप कोच, एज ए फैमिली काउंसलर, एंड देन it led to masters in clinical psychology to understand mental health. Wow, So, lovely. establishing the mind mentors with that tagline, we coach your सोच, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने 2015 में लॉन्च किया, डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस एंड सपोर्ट एट लोकल, नेशन एंड ग्लोबल लेवल. Wow, तो lovely. जैसे आपको समझ ही आ गया होगा कि इवेंचुअली साइकोलॉजी बिकेम माय कॉलिंग, जर्नी ऑफ माय पैशन, डेडिकेशन एंड सर्विस टू कम्युनिटी. तो मैं ये कहूंगी कि मैंने साइकोलॉजी को नहीं चुना, इसने मुझे चुना. Wow, lovely, ma'am, lovely. Such a sweet and great, inspiring story you have. And blessed are you to have a supportive family, plus your husband, and जिन्होंने मतलब इतना पूरी लाइफ को ही आपके एक डायरेक्शन ऐसे दे दी. And till date, Yes. you have become such a versatile personality कि हर एक एरिया को आप टच कर चुके हैं. Means it's truly blessing to hear this. ये कैसे Yeah. मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट, और एक मैं ये कहूँगी सेल्फलेस गिविंग. मीन्स आप एक वो होता है ना कि हाँ मुझे ये करना है तो ये मिलेगा, तो वो मेरे को नहीं लगा आपकी लाइफ स्टोरी में ऐसा कभी कुछ रहा भी होगा. नहीं, नहीं. यस, तो इट्स So I सच just अ ग्रेट. contributed, and people, society, life, it has blessed me with so many, you can say recognitions, appreciation, awards, love, affection throughout globe. And especially in COVID times, I served global masses consistently in various areas of distress. और उसमें बिल्कुल भी हमने 1.5-2 साल सोचा नहीं कि हमें क्या मिल रहा है या क्या नहीं. बिल्कुल इतना ज्यादा हमने डेडिकेटेड तरीके से सर्व किया कम्युनिटी को थ्रू ऑनलाइन. तो देन आई acclaimed a honorary doctorate award in clinical psychology from World's Human Rights Protection Commission in association with Government of India and Singapore University. अच्छा, ग्रेट अवार्ड. यही है ना कि जब आप सेल्फलेस गिविंग की उसमें आते हो, वॉट एवर यू आर गिविंग दैट विल ऑटोमेटिकली कम बैक टू यू ऑन इट्स ओन वे. एंड Definitely. यस, द डिवाइन एनर्जी विच कनेक्ट्स, एंड मतलब वो अपने आप ही सही टाइम पे सही जगह पे आपके पास कहीं ना कहीं से वो आ ही जाएगा, इफ यू आर दैट मच ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन योर लाइफ. Yes. मतलब आपकी ये जो स्टोरी से मुझे इतना वो इंस्पायरिंग मिल रहा है ये चीज का कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि आपका कौन कौन से एरियाज आपने इम्पैक्ट किए होता. आपने ऑलरेडी इतने स्पेशलाइजेशंस अपने बता दिए. एंड मीन्स मूविंग फॉरवर्ड टू दिस कि ऐसा क्या रीजन रहा इस ड्रास्टिक राइज के पीछे कि आपने मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन को चूज भी किया, और 15 ईयर से जैसे हम देखते आ रहे हैं ये एक मेन प्रॉब्लम बनती जा रही है. तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस, मतलब इसके पीछे एक रीजन क्या है? या यू आर राइट प्रीति. जैसे मैंने बोला कि जब ड्रग्स आई और फिर धीरे धीरे ऐसे केसेस मेरे पास यंगस्टर्स के आते थे जो सिर्फ काउंसलिंग का मुद्दा नहीं होते थे, तो बहुत ही डीपर लेवल पे मैंने मेंटल हेल्थ का डिटीरियोरेशन देखा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, और बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को भी समझने की कोशिश की है. अर्बनाइजेशन ले लो, मॉडर्नाइजेशन ले लो, इसने हमारी सबकी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट लाइफस्टाइल चेंज लाया है, जिससे एक स्ट्रेस लेवल और सोशल प्रेशर बहुत बड़ा है. कहने को तो हम इसे तरक्की या एडवांसमेंट कहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, उसने जितना कुछ बदला है हमारे लोगों की लाइफ में, उसने मेंटल हेल्थ को बहुत सीवियरली अफेक्ट किया है. मैंने विटनेस किया है कि जैसे जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़े, वैसे वैसे स्टिग्मा भी ब्रेक हुआ, लेकिन अभी भी इंडिया में एक सिग्निफिकेंट बैरियर है टू सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट. इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ सर्विसेज महंगी होती हैं. सो दैट्स हाउ वी हैव नॉट इनिशिएटेड इज एज ए कमर्शियल बिजनेस. वी हैव टेकन एज ए वेरी सोशल रिफॉर्म प्लेटफॉर्म. तो हम बहुत इकोनॉमिकल तरीके से लोगों को अपने तक जोड़ते हैं. और मैंने ये भी समझा है प्रीति ड्यूरिंग दिस जर्नी कि हमारे पेरेंट्स और टीचर्स ऑफ टूडेज एज, दे आर टू मच स्ट्रेस देमसेल्व्स. और न्यूक्लियर सेटअप में, कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल सिनेरियोज में, विद कॉम्बिनेशन ऑफ सोसाइटल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बढ़ना ही था. आप खुद देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी हम ध्यान दें तो क्या नहीं बदला हमारी जिंदगी में. छोटे से बच्चे से लेके एक बुजुर्ग की जिंदगी में
ग्लोबल इम्पैक्ट इतना ज्यादा आया थ्रू सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी कि हम ना घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं। True. हम आज जहां हैं हम वहां खुश नहीं है, और जहां हमें खुशी दिख रही है वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो दैट इज द मेन रीजन, रेस्टलेसनेस, ओवर थिंकिंग, लैकनेस, नॉट ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है। वी आर रनिंग आफ्टर रिसोर्सेज, वी आर रनिंग आफ्टर पावर, वी आर रनिंग आफ्टर मनी। So true. सो जो एक वैल्यू होती थी ना, पीस की, कंटेंटमेंट की, सर्विस की, कंट्रीब्यूशन की, वो बहुत कम दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल आप जी यस। जिस तरीके से आपने ये चीजें बताई है ना, बीइंग अ टीचर, आई हैव बीन वर्किंग इन 13 years फॉर स्कूल। जैसा मैंने टीचर्स को भी ये देखा है, इतना स्ट्रेस्ड आउट, घर का ये, हस्बैंड का वो, बच्चों का वो, फिर स्कूल में आके बच्चों का ये। एंड प्लस जो आपने ये ड्रग्स की इतनी बात करी, तो उस टाइम पे कोई इतना मतलब स्कूल में कोई बात भी नहीं करता था इस चीज की कि आप बच्चों को इस चीज की अवेयरनेस भी दो, या कुछ कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर अवेयरनेस दो। ऑन द अदर हैंड, जो आपने सोशल मीडिया का बताया, सोशल मीडिया पे कंटेंट भी इतने आते हैं, चाहे हम टीनेज की बात करें चाहे हम एडल्ट्स की बात करें, मतलब हर कंटेंट हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, ऐसा वो कोई बताता ही नहीं था। जो आ रहा है मतलब बस बिल्कुल। देखे जाओ देखे जाओ। एंड पीपल स्टार्ट रेजोनेटिंग विद देमसेल्व्स ओनली। अच्छा ये ऐसा होता है, उसके साथ ये हो गया। अब मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एक टीचर थी, उन्होंने, उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब शी वॉज डायग्नोज विद सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और उनको जो है हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। एंड शी वॉज सो मच स्ट्रेस मैम कि वो, जैसे उसने गूगल पे या वीडियोस पे सर्च किया ना, शी सर्च कि मेरी मम्मी का तो कुछ नहीं होगा, मेरी मम्मी तो बचेंगी या नहीं। मतलब बिल्कुल। कुछ होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, डॉक्टर्स ने बताया नहीं बताया वो भी सेकेंडरी चीज छोड़ दी। लेकिन जो देख के उन्होंने रेजोनेट कर लिया, एंड द काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस शी वाज हैविंग, उसको उस टाइम पे वो करना बहुत मुश्किल हो गया था फिर हमारे। Exactly. This is actually very severe problem of today's era के साइबर सिंड्रोम सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है कि everybody is googling every kind of information without any knowledge, background or any expertise. और वो सेल्फ एक्लेम्ड इंफॉर्मेशन जो है वो लेके ही हम डॉक्टर्स के पास भी पहुंचते हैं। दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हमें क्या हुआ है और अब क्या नहीं हो सकता। वो सबसे खतरनाक चीज है, और यही ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो Yes. ये तो चीज इतना मतलब अलार्मिंग है कि अगर टाइम टू टाइम अवेयरनेस ना दी जाए तो फिर मतलब पीपल तो आज के टाइम पे जीना ही भूल जाएंगे फिर। आइदर दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर, या वो पास्ट के रिग्रेट्स लेके बैठे रहेंगे, ना वो I'm छूटेगा ना वो आएगा। so, yeah, I resonate with this, and I'm so thankful to you and people like you who are doing this unconditional work, talking to people, creating podcast, creating channels, और ये जो आप हम लोग कर रहे हैं वो इसका मिशन ही यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकें। बट ट्रेजिकली लोगों को यूजलेस रील्स में और सोशल मीडिया के बेहुदे कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है। जो चीज उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और वैल्यू एडिशन करने वाली है उस पे अभी भी ऑडियंस कम रहती है। सो मेरी यहाँ हमें सुनती हुई हर एक ऑडियंस से ये बहुत बड़ी अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे कंटेंट को शेयर करें, ताकि आप वो सोर्स ऑफ राइट इंफॉर्मेशन बने जो लोगों की जो माइंड के जो बल्ब हैं उन्हें ऑन करे, ना कि उन्हें डिम करे। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स रियली, एंड इट्स अ बल्ब ऑन स्टेटमेंट विच यू हैव गिवन फॉर द ऑडियंस कि अपने बल्ब को ऑन करो, दूसरों के भी बल्ब को ऑन कर दो, डिम मत करो। यस। एंड सी द राइट कंटेंट, क्योंकि आज का टाइम टेक्निकल इतना ज्यादा है कि हर एरिया में वो जरूरी है, बट वो कहाँ जरूरी है, कितना जरूरी है, दैट हैज टू बी प्रायोरिटाइज, कि आप बिल्कुल। बाकी सारी चीजों को वो वेव ऑफ कर दो। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर अप्रिशिएटिंग दिस पॉडकास्ट ऑल्सो फॉर दिस, कि मेरा मिशन ही यही है कि मैं लोगों को अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के इंटरेक्शन करके उनके निश के थ्रू आगे अवेयरनेस स्प्रेड करूं। बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन हैज, कि हर किसी के पास हर चीज की नॉलेज नहीं होती। अगर मेंटल हेल्थ की एग्जैक्टली। बात करें या किसी और चीज की बात करें, तो हर चीज की हर नॉलेज हर किसी के पास नहीं है। तो इट्स बेटर टू हैव एन एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स जो करके देख के गुजर चुके हैं और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ले चुके हैं उस चीज का। That's highly appreciable because I have gone through your channel and you have invited a diversified range of professionals, and it takes lot of efforts, energy, and time and resources. तो ये सो ट्रू मैम।
Absolutely, it takes a lot of time, but yes, it's a blessing also for me कि मैं अलग अलग प्रोफेशनल्स को बुला के उनसे बात करके एक अवेयरनेस स्प्रेड करूं सबकी तरफ. एंड हाँ जी मैम, यू आर सेइंग दैट it's a great blessing. I was continuing with that only. That's a great blessing for me too कि मैं सबको जो है इनवाइट करती इसलिए हूँ ताकि सबकी तरफ वो अवेयरनेस उसमें जाए, चाहे फाइनेंशियल है, मेंटल है, हेल्थ है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है. तो एक्सपर्टीज की नॉलेज के थ्रू मैं उसको आगे वो करना चाहूँ. So with this continuation, I would like to ask one thing, that what are the rising challenges in the areas in the younger generation? ये ऐसे challenges younger generation में ज्यादा देखे जाते हैं, तो उसके पीछे उनके Yes. reasons क्या हैं? अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें प्रीति, तो राइट जो चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली इवन वी कैन सी इन न्यू बॉर्न जनरेशन, children born in the last few years, because they are shaped by a rapidly evolving environment, Right. जिसमें सिग्निफिकेंट सोसाइटल, टेक्नोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे. और ये चैलेंजेस जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और जो उनको आगे फिर एनवायरनमेंट मिल रहा है शेप करने के लिए, नेचर वर्सेस नर्चरिंग, दोनों पे ही ह्यूज इम्पैक्ट आया है. तो इसमें अगर हम सबसे पहले लें तो हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में ही बहुत ही एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है. और इवन इन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस पे भी ये बिहेवियरल इश्यूज क्रिएट कर रहा है. तो इसका रीजन क्या है? दैट इज एक्सपोजर टू स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट. उस पर हमें बच्चों पे काम नहीं करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट को रेक्टिफाई करना है. हमें पेरेंटल एंजाइटी पे काम करना है. ये एडल्ट्स जो मॉडर्न लाइफ की पेस में दौड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है बच्चों के स्ट्रेस लेवल्स पे. और बच्चों पे जो एक सोसाइटल और एजुकेशनल प्रेशर है टू एक्सेल एकेडमिकली एंड सोशली फ्रॉम ए वेरी यंग एज, वो भी स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है. मेरे अपने 33 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने 4 जनरेशन्स को टैकल किया है या कैटर किया है, मैं कहूंगी. 4 जनरेशन्स में मैंने इतना रिमार्केबल डिफरेंस देखा है, सोच में, थॉट्स में, इमोशंस में एंड एक्शंस में. उनका माइंडसेट ही कंप्लीटली ड्रेस्टिकली करप्ट हो गया है, और जिसकी वजह से अटैचमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट इश्यूज भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं. बहुत इनसिक्योर अटैचमेंट्स हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन है, रिलेशनशिप चैलेंजेस आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है, पेरेंटल शेड्यूल्स बहुत बिजी हैं. उसके बाद बॉन्डिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत रिड्यूस हो गई हैं. और जो क्रूशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, अगर कोई बच्चा इस चीजों को एक्सपोज कर रहा है, या फिर पेरेंटल मेंटल हेल्थ स्ट्रगल को देख रहा है कि पेरेंट्स ही मेंटल हेल्थ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उसके इमोशनल अटैचमेंट में, अट्यूनमेंट में फर्क पड़ता है. इसके अलावा अगर हम देखें तो डिजिटल ओवरलोड की हम बात कर रहे थे अभी तक, उसके इम्पैक्ट से भी हम अनजान नहीं है. एक्सेस एक्सपोजर टू डिजिटल मीडिया फ्रॉम ए वेरी यंग एज, इट इज अफेक्टिंग कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट. स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गए. आपने फ्रीक्वेंटली ये ऑब्जर्व किया होगा एनवायरनमेंट में, आप विटनेस किया होगा कि थोड़ा सा बच्चा रोता है, तंग करता है, मदर या फादर या कोई भी केयर गिवर उसे फटाफट फोन पकड़ा देते हैं टू एंटरटेन देम और टू काम देम, कि चलो खाना खा ले, या फिर पब्लिक प्लेस पे तंग ना करे, या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं. तो ये जो है बहुत ओवर स्टिमुलेशन दे रहा है छोटे बच्चों को, लीडिंग टू अटेंशन इश्यूज. बहुत खतरनाक अटेंशन स्पैन प्रॉब्लम आ रही है. प्ले टाइम बहुत रिड्यूस हो गया है ड्यू टू हमारा आउटसाइड एनवायरनमेंट इतना अनसेफ हो गया है, जिसे करेक्ट करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को ही धीरे धीरे अंदर और अंदर बांधते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से फर्दर पुअर सोशल स्किल्स डेवलपमेंट हो रही है. जब हम इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाके, खेलेंगे ही नहीं, अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हमारा सोशल स्किल कैसे होगा? हम में सोशल फोबिया, जो इसको हम सोशल म्यूटिज्म कहते हैं, ये सब आएगा ही आएगा. और स्क्रीन से बच्चे स्टक हो रहे हैं, ये उनकी गलती नहीं है, हमने उन्हें लिमिटेड एनवायरनमेंट और टाइम अप्रोच दे दी है, एक्सपोजर लिमिटेड हो गया है, इसी वजह से उनके स्लीप साइकिल भी और स्लीप पैटर्न्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं. Absolutely, absolutely.
तो सही। सोशल आइसोलेशन की शिकायत हम बच्चों से करते हैं, कमरे से नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते, कोई आए तो विश नहीं करते, हमारे साथ कहीं जाना पसंद नहीं करते। अरे हम लोग बड़े हुए हैं बहुत ही हाईली कनेक्टेड सोशल सिस्टम में। राइट। तो हमें तो नहीं कोई बंद करके बिठा सकता, हम तो ग्लूड नहीं है स्क्रीन के साथ, भले ही हमारी प्रोफेशनल नीड भी है। राइट। फिर भी हमें मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में ही मजा आता है। हम उसके लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, एफर्ट भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन डिजिटल सर्विसेज है, रिड्यूस्ड आउटडोर और अनस्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम है, इसने बच्चों को बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं फॉर रियल लाइफ सोशल इंटरेक्शन। तो जिस वजह से उनकी लाइफ हम खुद किल कर रहे हैं। एब्सोल्युटली मैम। और इसका एक और बहुत नेगेटिव जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं एज प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंटल डिलेज इन किड्स, डिले इन लैंग्वेज, डिले इन मोटर एंड सोशल स्किल्स इतना कॉमन है, along with ADHD एंड ऑटिज्म। राइट। जिस वजह जो भी मैंने अभी कारण बताए वो सब इस चीज को भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्री स्कूलिंग में ही हम बच्चों में ये जो इश्यूज हैं वो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और जब बच्चा हैंडल नहीं कर पाता ये सारा कुछ, उसको पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली इमोशनल डिसरेगुलेशन, बिहेवियरल इश्यूज, टेंट्रम्स ये सब होंगे ही होंगे। क्योंकि उसे नहीं पता कि मुझे अभी अपने एंगर को, सैडनेस को, फ्रस्ट्रेशन को और ये सारे ओवरलोड को कैसे मैनेज करना है। करना। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। लेकिन राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे सेम की सेम है। राइट। 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 पहले के टाइम की जैसी बात रही नहीं ना। अब जैसे हम लोगों ने अपना ब्रिंग एंड ब्रॉट अप देखा है, मीन्स अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो वी वर इन अ जॉइंट फैमिली। तो उस टाइम ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे कि बेटा चलो बाहर घूमने चलो, तो चाहे वो कैसे भी करके लेके जाते थे। चप्पल उतारो और गीली घास पे घूमो। खास पे इट वाज सीरियसली अ ग्रेट थिंग कि हाँ, उस टाइम नहीं समझ में आती थी कि ऐसा क्यों, बट बाद में जब वो एनर्जी और अर्थ की आपको इतना पॉजिटिव कर देती ना, धीरे धीरे जाके समझ में आता कि ये इसलिए था। और अब का टाइम ऐसा डिजिटल आ गया है कि पेरेंट्स खुद ही, जैसे आपने कहा कि खुद तो पहले फोन दे देंगे और एज अ टीचर आया वो ऑब्जर्व कि स्कूल में आके बोलेंगे मैम ये तो हमारी सुनता नहीं, ये तो जब देखो फोन पे ही लगा रहता है, टीवी में ही देखता रहेगा। अरे भैया क्यों दिया फिर? वो सेम थिंग I resonated, and many things you have shared. Thank you so much for these problems. But as of now, as we have come to the end of this, I would love to ask you three takeaways for the society. मतलब कैसे सोसाइटी को हेल्प करना चाहिए इस चीज में कि हम अपनी भी मेंटल हेल्थ ठीक रखें और बच्चों की भी रख सकें। जी मतलब सबसे पहले तो जरूरी है कि माई लाइफ माई चॉइसेस हमारा एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैं हमेशा छोटे से लेके बड़ों को बताती हूँ कि आर चॉइसेस लीड टू कॉन्सिक्वेंसेस। आज हम कॉन्सिक्वेंसेस को देख के माथा पीट रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं, इतना ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन अपनी चॉइसेस में ऑल्ट्रेशन नहीं कर रहे। तो मैं बड़ों से बात कम ही करती हूँ, बिकॉज उनके जो माइंडसेट है ना वो कहीं ना कहीं फिक्स्ड माइंडसेट्स हैं, रिजिड माइंडसेट जिसको बोलते हैं कि हम तो सही ही हैं, हम क्या करें, हमारे साथ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। सो मैं हमेशा यंगस्टर्स को एड्रेस करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ कि उन्हें अपना स्पार्क और इनर फ्लेम को डिस्कवर करना पड़ेगा। उनको थोड़ा सा अपने लिए जो है वो कॉन्शियस होना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी को कल्टीवेट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि आजकल ये जरूरत बन गई है और इसके बिना हम रह नहीं सकते। लेकिन हमें क्रिटिकली इवेल्युएट करनी पड़ेगी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन्फ्लुएंस ऑन सेल्फ स्टीम, और रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप जो है वो हम सबको सीखनी पड़ेगी। राइट। राइट। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आए जिसमें हम लर्निंग और सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, उसे छोड़ना नहीं। सिर्फ डिग्रीज, पढ़ाई और जो कहते हैं ना कि अचीवमेंट्स पे ध्यान नहीं देना, हमें रिफ्लेक्ट और रीअसेस भी करना है कि जो हम कर रहे हैं उसमें कुछ फायदा भी हो रहा है, उसे हम इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। वाह सो वाह। लर्न कॉन्टिन्यूसली एंड वॉलंटियर, राइट। ट्रैवल करिए, एक्सप्लोर करिए, वॉलंटियर करिए, कंट्रीब्यूट करिए अपने स्किल्स को, अपनी स्ट्रेंथ को लोगों के साथ। जितने भी लेस अपॉर्चुनिटी हैं या जिनको हम बोलते हैं कि बिलो द डिजर्विंग लाइन लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा शेयर करिए, उनके साथ बांटिए अपने रिसोर्सेज को, नॉलेज को, अपनी वेल्थ को, अबंडेंस को। तब आपको पता लगेगा कि आप एक ऑसम सुपर हीरो हो। आपको ओवर थिंकिंग
इनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह तो वाह आपके बहुत। पास जितना मर्जी रिसोर्सेज हो, वेल्थ हो, एबंडेंस हो, जितना मर्जी आप कमा लेंगे, अपने बच्चों को आप जितनी मर्जी लैविश लाइफस्टाइल दे लेंगे, लेकिन अगर उनका मन अच्छा नहीं है, मन चंगा तो सब चंगा। सब चंगा। तो जीवन की गहराइयों में कोई राज छिपे होते हैं, अनेकों अनुभव, विविध भाव छिपे होते हैं। हर मन की खनक अलग है, हर जीवन का परिपेक्ष अलग है। सो कंसीडर एवरी इंडिविजुअल एज ए यूनिक आइडेंटिटी। उसके ऊपर किसी और के सपने या अपने सपने लादने की कोशिश नहीं करती। Lovely, सो lovely. यस, What a beautiful crux रिस्पेक्ट you have. एवरी इंडिविजुअल एंड कल्टिवेट एवरी इंडिविजुअल। Right. Means what a beautiful crux you have given, मैम, कि मतलब अगर मैं इन सारे पूरे एपिसोड को एक लाइन में बोलूं, you are really a role model for everyone, थैंक यू। everyone. And if anybody wants to be like ma'am, then please do connect with her and do ask her कि कैसे कैसे इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें देखी हैं और कैसे निकल के आए हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं सबकी. Means it's wonderful, seriously amazing, ma'am, amazing. I seriously don't have words to say, but it's really wonderful to have you. So मैं तो thank यही कहना चाहूंगी प्रीति कि तू चल, तू क्यों हताश है, तू अकेला नहीं, अब तो समय को भी तेरी तलाश है। एक एक इंसान की समय को जरूरत है, ये समय इतना खराब चल रहा है हमारे यंग जनरेशन के लिए। तो मैं हर एक को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आइए, उठिए, हम हैं आपकी हाथ थामने के लिए, दुनिया को आपकी जरूरत है। हम आपको तैयार करेंगे कि इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो। thank you so much, ma'am, for this inspiration also and great motivation. Thank you so much. मतलब मेरे लिए थैंक कुछ यू। रहा ही नहीं कि मैं कुछ उनको बोलूं. आपने सब कुछ ही एक उसमें एकदम इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर दिया. Thank you थैंक यू। so much गुड। for coming and giving these valuable insights through your life journey in a short time span. Thank थैंक you यू, so माय much. प्लेजर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।